اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ رات ناجی کے خاص کمرے میں اس کے دو کمانڈر جو اس کے معتمد اور ہمراز تھے اس کے پاس بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ ناجی نے کہا، جوانی کا جوش ہے، تھوڑے دنوں میں ٹھنڈا کر دوں گا۔ کمبخت جو بھی بات کرتا ہے کہتا ہے رب کعبہ کی قسم صلیبیوں کو سلطنت اسلامیہ سے باہر نکال کر دم لوں گا۔ ایک کمانڈر نے طنزیہ کہا، صلاح الدین ایوبی اتنا بھی نہیں جانتا کہ سلطنت اسلامیہ کا دم نکل چکا ہے، اب سوڈانی حکومت کریں گے۔ دوسرے کمانڈر نے ناجی سے پوچھا، کیا آپ نے اسے بتایا نہیں کہ یہ 50,000 کا لشکر سوڈانی ہے اور یہ لشکر جسے وہ اپنی فوج سمجھتا ہے صلیبیوں کے خلاف لڑے گا نہیں؟ ناجی نے کہا، تمہارا دماغ ٹھکانے ہیں اور وش۔ میں اسے یہ یقین دلایا ہوں کہ یہ 50,000 سوڈانی شیر اس کے اشارے پر صلیبیوں کے پرخچے اڑا دیں گے۔ لیکن ناجی چپ ہو کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے پوچھا، لیکن کیا؟ ناجی نے کہا، اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ مصر کے باشندوں کی ایک فوج تیار کروں۔ اس نے کہا ہے کہ ایک ہی ملک کی فوج مناسب نہیں ہوگی، وہ مصر کے لوگوں کو بھرتی کر کے ہماری فوج میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ اوروش نے کہا، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ ناجی بولا، میں نے کہا کہ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی مگر میں ایسے حکم کی تعمیل نہیں کروں گا۔ اوروش نے پوچھا، مزاج کیسا ہے؟ ناجی نے جواب دیا، ضد کا پکا معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے کمانڈر نے کہا، آپ کی دانش اور تجربے کے سامنے تو وہ کچھ بھی نہیں لگتا، نیا نیا امیر مصر بن کر آیا ہے، کچھ روز یہ نشہ طاری رہے گا بس۔ ناجی نے کہا، میں یہ نشہ اترنے نہیں دوں گا، اسے اسی نشے میں بدمست کر کے ماروں گا۔ بہت دیر تک یہ تینوں صلاح الدین ایوبی کے خلاف باتیں کرتے رہے اور اس مسئلے پر غور کرتے رہے کہ اگر صلاح الدین ایوبی نے ناجی کی بے تاج بادشاہی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا تو وہ کیا کارروائی کریں گے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی اپنے نائبین کو سامنے بٹھائے یہ ذہن نشین کروا رہا تھا کہ وہ حکومت کرنے نہیں آیا اور نہ کسی کو حکومت کرنے دے گا۔ اس نے انہیں کہا کہ اسے جنگی طاقت کی ضرورت ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ اسے یہاں کا فوجی ڈھانچہ بالکل پسند نہیں۔ 50,000 باڈی گارڈ سوڈانی ہیں، ہمیں ہر خطے کے باشندوں کو یہ حق دینا ہے کہ وہ ہماری فوج میں آئیں، اپنے جوہر دکھائیں اور مال غنیمت میں سے اپنا حصہ وصول کریں۔ یہاں کے عوام کا معیار زندگی اسی طرح بلند ہو سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے انہیں بتایا، میں نے ناجی سے کہہ دیا ہے کہ وہ عام بھرتی شروع کر دے۔ ایک ناظم نے اس سے پوچھا، کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا؟ ایوبی نے کہا، کیا وہ حکم کی تعمیل سے گریز کرے گا؟ ناظم نے کہا، وہ گریز کر سکتا ہے، فوجی امور اسی کے سپرد ہیں، وہ کسی سے حکم نہیں لیا کرتا، صرف اپنی منوایا کرتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی خاموش رہا جیسے اس پر کچھ اثر ہی نہ ہوا ہو۔ اس نے سب کو رخصت کر دیا اور صرف علی بن سفیان کو اپنے ساتھ رکھا۔ علی بن سفیان جاسوسی اور جوابی جاسوسی کا ماہر تھا۔ اسے صلاح الدین ایوبی بغداد سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر آدمی تھا، اداکاری، چرب زبانی اور بھیس بدلنے میں مہارت رکھتا تھا۔ جنگوں میں اس نے جاسوسی بھی کی تھی اور جاسوسوں کو پکڑا بھی تھا۔ اس کا اپنا گروہ تھا جو آسمانوں سے تارے بھی توڑ لاتا۔ صلاح الدین ایوبی کو جاسوسی کی اہمیت سے واقفیت تھی۔ فنی مہارت کے علاوہ علی میں وہی جذبہ تھا جو صلاح الدین ایوبی میں تھا۔ صلاح الدین نے کہا، تم نے سنا علی، یہ لوگ کہہ گئے ہیں کہ ناجی کسی سے حکم نہیں لیا کرتا، اپنی منوایا کرتا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، ہاں میں نے سن لیا ہے، اگر میں چہرے پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا تو میری رائے میں باڈی گارڈز کا یہ کمانڈر جس کا نام ناجی ہے ناپاک ذہنیت کا انسان ہے۔ اس کے متعلق میں پہلے سے بھی کچھ جانتا ہوں۔ یہ فوج جو ہمارے خزانے سے تنخواہ لیتی ہے دراصل ناجی کی ذاتی فوج ہے۔ اس نے حکومتی حلقوں میں ایسی سازشیں کی ہیں جنہوں نے انتظامی ڈھانچے کو بے حد کمزور کر دیا ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ بالکل بچا ہے کہ فوج میں یہاں کے ہر خطے کے سپاہی ہونے چاہیے۔ میں آپ کو تفصیلی معلومات فراہم کروں گا۔ مجھے شک ہے کہ سوڈانی فوج ناجی کی وفادار ہے، ہماری نہیں۔ آپ کو اس فوج کی ترتیب اور تنظیم بدلنی پڑے گی یا ناجی کو سبکدوش کرنا پڑے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں اپنی صفوں میں ہی اپنے دشمن پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ ناجی گھر کا بھیدی ہے، اسے سبکدوش کر کے اپنا دشمن بنا لینا دانش مندی نہیں۔ ہماری تلوار غیروں کے لیے ہے،
अपनों का खून बहाने के लिए नहीं। मैं नाजी की ज़हनियत को प्यार और मोहब्बत से बदल सकता हूँ। तुम उस फौज की ज़हनियत मालूम करने की कोशिश करो। मुझे सही इत्तला दो कि फौज कहाँ तक हमारी वफादार है। नाजी इतना कच्चा आदमी भी नहीं था। उसकी ज़हनियत प्यार और मोहब्बत के बखेड़ों से आज़ाद थी। उसे अगर प्यार था तो अपने इक़्तिदार और शैतानियत के साथ। इस लिहाज से वो पत्थर था, मगर जिसे अपने जाल में फांसना चाहता उसके सामने मोम हो जाता। उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ यही रवैया इख्तियार किया। उसके सामने वो बैठता नहीं था, हाँ में हाँ मिलाता चला जाता। उसने मिस्र के मुख्तलिफ खित्तों से अय्यूबी के हुक्म के मुताबिक फौज के लिए भर्ती शुरू कर दी। हालांकि ये काम उसकी मर्जी के खिलाफ था। दिन गुजरते जा रहे थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी उसे कुछ कुछ पसंद करने लगा था। नाजी ने उसे यकीन दिलाया था कि सूडानी बॉडीगार्ड्स फौज उसके हुक्म की मुंतजिर है और ये कौम की तवक्कुआत पर पूरी उतरेगी। नाजी सलाहुद्दीन अय्यूबी को 2-3 मरतबा कह चुका था कि वो बॉडीगार्ड्स की तरफ से उसे दावत देना चाहता है और फौज उसके एजाज में जश्न मनाने के लिए बेताब है। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी मसरूफियत की वजह से ये दावत कबूल न कर सका। रात का वक्त था। नाजी अपने कमरे में अपने 2 मोतमिद जूनियर कमांडरों के साथ बैठा शराब पी रहा था। 2 नाचने वालियां साजों की हल्की हल्की मौसीकी पर मस्ती में आई हुई नागिनों की तरह मसूर कुन अदाओं से रक्स कर रही थीं। उनके पांव में घुंघरू नहीं थे। उनके जिस्मों पर कपड़े सिर्फ उसी कदर थे कि उनके सतर ढके हुए थे। इस रक्स में खुमार का तासुर था। दरबान अंदर आया और नाजी के कान में कुछ कहा। नाजी जब शराब और रक्स में महव होता था तो कोई मुखिल होने की जुर्रत नहीं कर सकता था। सिर्फ दरबान को मालूम था कि वो कौन सा जरूरी काम है जिसकी खातिर नाजी ऐशो तरब की महफिल से उठा करता है, वरना वो अंदर आने की जुर्रत न करता। उसकी बात सुनते ही नाजी बाहर निकल गया और दरबान उसे दूसरे कमरे में ले गया। वहां सूडानी लिबास में मलबूस एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा था। उसके साथ एक जवान लड़की थी। नाजी को देखकर वो उठी। नाजी उसके चेहरे और कद काठ की दिलकशी देखकर ठिठक गया। वो औरतों का शिकारी था। उसे औरतें सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए दरकार नहीं होती थीं। उनसे वो और भी कई काम लिया करता था, जिनमें एक ये था कि वो निहायत खूबसूरत और अय्यार लड़कियों के जरिए बड़े बड़े अफसरों को अपनी मुट्ठी में रखता था। और एक काम ये भी था कि वो उन्हें अमीरों वजीरों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करता था और उनसे वो जासूसी भी करवाता था। जिस तरह कसाब जानवर को देखकर बता देता है कि उसका गोश्त कितना है, उसी तरह नाजी लड़की को देखकर अंदाजा कर लिया करता था कि ये किस काम के लिए मौजू है। लड़कियों के व्यापारी और पर्दाफरोश अक्सर नाजी के पास माल लाते रहते थे। ये आदमी भी ऐसे ही व्यापारियों में से लगता था। लड़की के मुताल्लिक उसने बताया कि तजुर्बाकार है, नाच भी सकती है और पत्थर को जबान के मीठे जहर से पानी में तब्दील कर सकती है। नाजी ने उसका तफसीली इंटरव्यू लिया। वो इस फन का माहिर था। उसके मुताबिक उसने उस लड़की का इम्तिहान लिया और उसने ये राय कायम की कि जिस काम के लिए वो एक और लड़की को तैयार कर रहा था, उसके लिए ये लड़की थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद मौजू हो सकती है। सौदा तय हो गया। व्यापारी कीमत वसूल करके चला गया। नाजी लड़की को उस कमरे में ले गया जहां उसके 2 साथी रक्स और शराब से दिल बहला रहे थे। उसने लड़की को नाचने के लिए कहा। लड़की ने जब जुआ उतार कर जिस्म को 2 ही बल दिए तो नाजी और उसके साथी तड़प उठे। पहली दोनों नाचने वालियों के रंग पीले पड़ गए। इस नई लड़की के सामने उनकी कदर कीमत कम हो गई थी। नाजी ने उसी वक्त महफिल बर्खास्त कर दी और उस लड़की को अपने पास बिठाकर सबको बाहर निकाल दिया। लड़की से नाम पूछा तो उसने ज़ेकोई बताया। नाजी ने उसे कहा, ज़ेकोई, तुम्हें यहाँ लाने वाले ने बताया था कि तुम पत्थर को पानी में तब्दील कर सकती हो। तुम्हारा ये कमाल देखना चाहता हूँ। ज़ेकोई ने पूछा, वो पत्थर कौन है? नाजी ने जवाब दिया, नया अमीर मिस्र, वो सालार आजम भी है। ज़ेकोई ने पूछा, सलाहुद्दीन अय्यूबी? नाजी ने कहा, हाँ हाँ, सलाहुद्दीन अय्यूबी। अगर तुम उसे पानी में तब्दील कर दो तो हमारी तलवार गैरों के लिए है। अगर तुम उसे पानी में तब्दील कर दो तो उसके वजन जितना सोना तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। ज़ेकोई ने पूछा, वो शराब तो पीता होगा? नाजी ने जवाब दिया, नहीं। शराब, औरत, नाच गाने और तफरी से वो उतनी ही नफरत करता है जितनी हर मुसलमान खिंजीर से करता है। ज़ेकोई ने कहा, मैंने सुना था कि आपके पास लड़कियों का ऐसा तिलिस्म है जो नील की रवानी को रोक लेता है। क्या वो तिलिस्म बेकार हो गया? नाजी ने कहा, मैंने अभी आजमाया नहीं, ये काम तुम कर सकती हो। मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी की आदतों के मुताल्लिक तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगा। ज़ेकोई ने पूछा, क्या आप उसे जहर देना चाहते हैं? नाजी ने जवाब दिया, अभी नहीं, मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं।
मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो एक बार किसी तुम जैसी लड़की के जाल में फंस जाए, फिर मैं उसे अपने पास बिठाकर शराब पिलाऊंगा। अगर उसे कत्ल करना मकसूद होता तो मैं ये काम हैशिशीन से निहायत आसानी से करवा सकता था। ज़िकोई ने कहा, यानी आप उसके साथ दुश्मनी नहीं दोस्ती करना चाहते हैं। इतना बरजस्ता जुमला सुनकर नाजी चंद लम्हे लड़की को देखता रहा। वो उसकी तवक्को से ज्यादा ज़हीन थी। नाजी ने उसके मुलायम बालों पर हाथ फेर कर कहा, हाँ ज़िकोई, मैं उसके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, ऐसी दोस्ती कि वो मेरा हम निवाला और हम प्याला बन जाए। आगे मैं जानता हूँ कि मुझे उससे क्या काम लेना है। फिर नाजी ने जरा सोच कर कहा, लेकिन मैं तुम्हें ये भी बता देना जरूरी समझता हूँ कि एक जादू सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ में भी है। अगर तुम्हारे हुस्न और नाजो अंदाज पर उसका जादू चल गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम एक दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकोगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी तुम्हें मौत से बचा नहीं सकेगा। तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरे हाथ में है। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकोगी, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ खुलकर बातें की हैं। वरना मेरे रुतबे और हैसियत का आदमी एक पेशावर लड़की के साथ पहली मुलाकात में ही ऐसी बातें कभी न करता। ज़िकोई ने कहा, ये आपको आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसको धोखा देता है। मुझे ये बताइए कि सलाहुद्दीन अय्यूबी तक मेरी रसाई किस तरह होगी। नाजी ने कहा, मैं उसे एक जश्न में बुला रहा हूँ। उसे रात अपने यहाँ रखूंगा और तुम्हें उसकी ख्वाबगाह में दाखिल कर दूंगा। मैंने तुम्हें इसी मकसद के लिए बुलाया है। ज़िकोई ने कहा, आगे मैं संभाल लूंगी। वो रात गुजर गई और फिर कई रातें गुजर गईं। सलाहुद्दीन अय्यूबी इंतजामी कामों और नई फौज तैयार करने में इतना मसरूफ रहा कि नाजी की दावत कबूल करने का वक्त न निकाल सका। अली बिन सफियान ने उसे नाजी के मुताल्लिक जो रिपोर्ट दी उससे वो परेशान हो गया। उसने अली बिन सफियान से कहा, तो इसका मतलब ये है कि ये शख्स सलीबियों से ज्यादा खतरनाक है। अली बिन सफियान ने कहा, ये एक सांप है जिसे मिस्र की अमारत आस्तीन में पाल रही है। अली बिन सफियान ने नाजी की तखरीबकारी की तफसील सुनाई कि उसने किस तरह किस बड़े आदमी को अपने हाथ में लिया और इंतजामिया में मनमानी करता रहा। फिर कहा, और जिस सूडानी सिपाह का वो सालार है वो हमारी बजाय उसकी वफादार है। क्या आप उसका कोई इलाज सोच सकते हैं? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जवाब दिया, सिर्फ सोच ही नहीं सकता, इलाज शुरू कर चुका हूँ। मिस्र से जो सिपाह भर्ती की जा रही है उसे मैं सूडानी मुहाफिजों में गडमड कर दूंगा। फिर ये फौज सूडानी होगी ना मिस्री। नाजी की ये ताकत बिखर कर हमारी फौज में जज्ब हो जाएगी। नाजी को मैं उसके सही ठिकाने पर ले आऊंगा। अली बिन सफियान ने कहा, और मैं ये भी वसूख से कह सकता हूँ कि उसने सलीबियों के साथ भी गठजोड़ कर रखा है। आप सल्तनत इस्लामिया को एक मजबूत मरकज पर लाकर इस्लाम को वुस्अत देना चाहते हैं, मगर नाजी आपके ख्वाब को दीवाने का ख्वाब बना रहा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, तुम इस सिलसिले में क्या कर रहे हो? अली बिन सफियान ने कहा, वो मुझ पर छोड़ें, मैं जो कुछ करूंगा वो आपको साथ साथ बताता रहूंगा। आप मुतमईन रहें, मैंने उसके गिर्द जासूसों की ऐसी दीवार चुन दी है जिसकी आंखें भी हैं, कान भी, और ये दीवार मुतहर्रिक है। यूं समझ लें कि मैंने उसे अपने जासूसी के कले में कैद कर लिया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी को अली बिन सफियान पर इस कदर एतमाद था कि उससे उसकी दरपर्दा कार्रवाई की तफसील न पूछी। अली ने उससे पूछा, मालूम हुआ है कि वो आपको जश्न पर मदऊ कर रहा है। अगर ये बात सही है तो उसकी दावत उस वक्त कबूल कीजिएगा जब मैं आपको बताऊंगा। अय्यूबी उठा और हाथ पीठ पीछे रख कर टहलने लगा। उसकी आह निकल गई। वो रुक गया और बोला, इब्ने सफियान, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। बेमकसद जिंदगी से क्या ये बेहतर नहीं कि इंसान पैदा होते ही मर जाए? कभी कभी ये सोच दिमाग में आ जाती है कि वो लोग शायद खुशनसीब हैं जिनकी कौमी हिस्स मुर्दा होती है और जिनका कोई किरदार नहीं होता, बड़े मजे से जीते और अपनी आई पर मर जाते हैं। अली बिन सफियान ने कहा, वो बदनसीब हैं अमीर मोहतरम। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, हाँ इब्ने सफियान, मैं जब उन्हें खुशनसीब कहता हूँ तो यही बात मालूम नहीं कौन मेरे कान में कह देता है जो तुमने कही, मगर सोचता हूँ कि हमने तारीख का धारा इस मोड़ पर न बदला तो मिल्लत इस्लामिया बिखर कर दीवारों, जंगलों और सहराओं में खो जाएगी। मिल्लत की खिलाफत 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी। अमीर मनमानी कर रहे हैं और सलीबियों के आलाएकार बनते जा रहे हैं। मुझे ये डर भी महसूस होने लगा है कि मुसलमान अगर जिंदा रहे तो वो हमेशा सलीबियों के गुलाम और आलाएकार रहेंगे। वो इसी पर खुश रहेंगे कि जिंदा हैं, मगर कौम की हैसियत से वो मुर्दा होंगे। जरा नक्शा देखो अली, आधी सदी में देखो हमारी सल्तनत का नक्शा कितना सुकड़ गया है। वो खामोश हो गया, सर झुकाकर टहलने लगा।
फिर रुक गया और सर को झटक कर अली बिन सफियान को देखा। कहने लगा, जब तबाही अपने अंदर से उठे तो उसे रोकना मुहाल हो जाता है। अगर हमारी खिलाफत और अमारतों का यही हाल रहा तो सलीबियों को हम पर हमले करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। वो आग जिसमें हम अपना ईमान, अपना किरदार और अपनी कौमियत जला रहे हैं, उसमें सलीबी आहिस्ता आहिस्ता तेल डालते रहेंगे। उनकी साजिशें हमें आपस में लड़ाती रहेंगी। मैं शायद अपना अज़्म पूरा न कर सकूं, मैं शायद सलीबियों से शिकस्त भी खा जाऊं, लेकिन मैं कौम के नाम एक वसीयत छोड़ना चाहता हूं। वो ये है कि किसी गैर मुस्लिम पर कभी भरोसा न करना। उनके खिलाफ लड़ना है तो लड़कर मर जाना। किसी गैर मुस्लिम के साथ कभी समझौता और कोई मुआहिदा न करना। अली बिन सफियान ने कहा, आपका लहजा बता रहा है जैसे आप अपने अज़्म से मायूस हो गए हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, मायूस नहीं, जज्बाती। अली, मेरा एक हुक्म मुतल्लिका शोबे तक पहुंचा दो। भर्ती तेज कर दो और कोशिश करो कि फौज के लिए ज्यादा से ज्यादा ऐसे आदमी रखो जो जंग का तजुर्बा हासिल कर चुके हों। हमारे पास इतनी लंबी तरबियत का वक्त नहीं। भर्ती होने वालों का मुसलमान होना लाजमी करार दे दो और तुम अपने लिए जहन नशीन कर लो कि ऐसे जासूसों का एक दस्ता तैयार करो जो दुश्मन के इलाके में जाकर जासूसी भी करें और शबखून भी मारें। ये जांबाजों का दस्ता होगा। उन्हें खुसूसी तरबियत दो। उनमें ये सिफात पैदा करो कि ऊंट की तरह ज्यादा से ज्यादा अरसा प्यास बर्दाश्त कर सकें। उनकी नजरें उकाब की तरह तेज हों। उनमें सहराई लोमड़ी की मक्कारी हो और वो दुश्मन पर चीते की तरह झपटने की महारत, दलेरी और ताकत के मालिक हों। उनमें शराब, हशीश वगैरह की आदत ना हो और औरत के लिए वो बर्फ की तरह यख हों। भर्ती तेज करवा दो बिन सुफियान, और याद रखो, मैं हुजूम का कायल नहीं। मुझे लड़ने वालों की जरूरत है, खा तादाद थोड़ी हो। उनमें कौमी जज्बा हो और वो मेरे अज़्म को समझते हो। किसी के दिल में ये शुबा ना हो कि उसे क्यों लड़वाया जा रहा है। अगले 10 दिनों में हजारहा तरबियत याफ्ता सिपाही अमारत मिस्र की फौज में आ गए और उन 10 दिनों में नाजी ने ज़िकोई को ट्रेनिंग दे दी कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को कौन कौन से तरीके से अपने हुस्न के जाल में फांस कर उसकी शख्सियत और उसके किरदार को कमजोर कर सकती है। नाजी के हमराज दोस्तों ने ज़िकोई को देखा तो उन्होंने बिला खौफ तरदीद कहा कि इस लड़की को मिस्र के फिरौन देख लेते तो खुदाई के दावे से दस्तबरदार हो जाते। नाजी का जासूसी का अपना निजाम था, बहुत तेज और दलेर। वो मालूम कर चुका था कि अली बिन सफियान सलाहुद्दीन अय्यूबी का खुसूसी मुशीर है और अरब का माना हुआ सुराग रसां। उसने अली के पीछे अपने जासूस छोड़ दिए थे और उसने अली बिन सफियान को कत्ल करवा देने का मंसूबा भी बना लिया था। ज़िकोई को नाजी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपने दाम में फांसने के लिए तैयार किया था, लेकिन वो महसूस न कर सका कि मराकश की रहने वाली ये लड़की उसके अपने आसाब पर सवार हो गई है। वो सिर्फ शक्ल सूरत ही की दिलकश नहीं थी, उसकी बातों में ऐसा जादू था कि नाजी उसे पास बिठाकर उसके साथ बातें ही करता रहता। उसने उन 2 नाचने गाने वाली लड़कियों से निगाहें फेरी थीं जो उसकी मंजूर नजर थीं। 3-4 रातों से उसने उन लड़कियों को अपने कमरे में नहीं बुलाया था। नाजी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी जो उनके कब्जे से निकलकर ज़िकोई की आगोश में अंडे देने लगी थी। उन्होंने ज़िकोई को रास्ते से हटाने की तरकीबें शुरू कर दी। वो आखिर इस नतीजे पर पहुंची कि उसे कत्ल करवा दिया जाए, मगर उसे कत्ल कराना मुमकिन नजर नहीं आता था क्योंकि नाजी ने उसे जो कमरा दे रखा था उस पर 2 मुहाफिजों का पहरा रहता था। उसके अलावा ये दोनों लड़कियां उस मकान से बिला इजाजत बाहर नहीं जा सकती थी जो नाजी ने उन्हें दे रखा था। उन्होंने हरम की खादिमा औरतों में से एक को एतमाद में लेना शुरू कर दिया। वो उसके हाथों ज़िकोई को जहर देना चाहती थी। अली बिन सफियान ने सलाहुद्दीन अय्यूबी का मुहाफिज दस्ता बदल दिया। ये सब अमीर मिस्र के पुराने बॉडीगार्ड थे। उसकी जगह उसने उन सिपाहियों में से बॉडीगार्ड्स का दस्ता तैयार कर दिया जो नई भर्ती में से आए थे। ये जांबाजों का मुंतखब दस्ता था जो सिपाहगरी में भी ताक था और जज्बे के लिहाज से उसका हर सिपाही मर्द हुर था। नाजी को ये तब्दीली बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने इस तब्दीली की बेहद तारीफ की और उसके साथ ही दरखास्त की कि सलाहुद्दीन अय्यूबी उसकी दावत कबूल कर ले अय्यूबी ने उसे जवाब दिया कि वो 1 आध दिन में उसे बताएगा कि वो कब दावत कबूल कर सकेगा। उसके जाने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अली बिन सफियान से मशवरा लिया कि वो दावत पर कब जाए। अली बिन सफियान ने उसे मशवरा दिया कि अब वो किसी भी रोज दावत कबूल कर ले।